Assalamu alaikum Zebest. Welcome to Zeb FM Digital. This is your host Fatma and you're watching BioTalk, where we delve deeper into the world of science and enlighten you about new researches being done in the field. Today, we have quite a podcast for you. We have three special guests here who are going to be talking about thalassemia. And of course, without further ado, let me introduce you to two Marias and a Fatma. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. How are you guys doing today? I'm good. How are you? I am perfectly fine. How has your day been so far? क्या हुआ है आपके साथ अभी? Nothing special. It has been tiring. I woke up early. I had to give a presentation. Oh my god. And then I have to prepare for this podcast as well. So Oh it's my been a bit god. tough. Being It's a fine. student, astaghfirullah. And that too, इतना बिल्कुल end में semester के, when you have projects, assignments, and of course presentations. So how is everyone mentally? क्योंकि semester खत्म होने वाला है of course. Like mentally काफी tiring है क्योंकि like इस week में like continuously presentation यही चल रहा है, presentation assignment submission और फिर like finals, तो like थोड़ा tiring हो गया है काफी ज़्यादा. काफी हो गया है. Okay, so just for the audience, could you please introduce yourselves and tell us what semester you are in and what program are you pursuing here at Zebist? Okay, so I'm in 5th semester and I am enrolled in biosciences and this is my 5th semester. Perfect. My name is Mariam Imran and I'm in the 5th semester of biosciences as well. Perfect. Assalamu alaikum. My name is Fatma and I'm the student of Zebis and it's my 5th semester. Great. Okay, so 5th semester students and of course another bioscience interview here, which makes me quite happy being a bioscience student of course. So 5th semester, काफी time हो तो गया है Zebis में. So how has your time been in Zebis so far? कुछ different नहीं था हमारे लिए, like classes, like मैंने कुछ ऐसा society में part नहीं लिया seriously. अच्छा अच्छा. Like सीधा classes से घर, assignments, like इसी में like life खत्म. पढ़ाई ही की पूरी यूनिवर्सिटी बस लाइफ. पढ़ाई किया. आपने यूनिवर्सिटी लाइफ एंजॉय नहीं की? नहीं. चले आगे अभी सेमेस्टर्स पड़े हैं. Anything you'd like to add, Maria? I feel like it's been a good time. I mean, I was always interested in laboratory work. So हर semester में नए courses होते हैं. They're all very interesting. सबकी अपनी अपनी specialties होती हैं. सबसे ज़्यादा तो मुझे lab work में ही मज़ा आया है. तो if we talk about the academic point of view, it's been good, but extracurriculars wise, I haven't done anything of the sort as of yet, but otherwise it's been good. Perfect. And what about you, Fatima? आपका कैसा experience रहा है Zebist के साथ और Zebist के बच्चों के साथ? Like मेरे इतने फ्रेंड्स तो नहीं है लेकिन जितने भी उनके साथ कभी टाइम स्पेंड करते हैं कभी नहीं करते. जैसे क्लासेस होती हैं पर तो हमारी प्रेजेंटेशंस वगैरह होती हैं, जितना टाइम मिलता है उतना स्पेंड करते हैं. बाकी घर I get introverted vibes from Fatima. So Fatima, you are kind of an introvert person then. Depends. Okay, depends. तो आपने कहा आपका फ्रेंड ग्रुप छोटा है, which again is not a bad thing. मुझे पर्सनली लगता है कि फ्रेंड ग्रुप थोड़ा सा छोटा ही होना चाहिए. आपका जो जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा दोस्त हो तब भी you like enjoying university life as long as you met good people of course. तो bioscience kids. बायोसाइंस सुनने में जरा डरावना सा लगता है, तो क्या सोच के इस फील्ड को परस्यू किया या किसी और फील्ड में थे और फिर इसमें आ गए? सो what was the story behind choosing bioscience as a subject or as a career? So I initially wanted to pursue MBBS. I wanted to become a doctor as usual, but then after A levels, I felt like I would want to choose something different, more towards R&D, more towards research and development, or something not so not something a bit low key, but still in the field of science. So I researched some courses and I figured this was the one for me. So I chose this one. Perfect. So I see why a lot of like MBBS students do go for biosciences. हम में से ऐसे बहुत सारे होते हैं. I also gave my MD-CATs and obviously it didn't happen for me or the way I wanted it to happen. वो पूरा process इतना अच्छा नहीं गया. But yeah, I find biosciences very enjoyable entirely because I am very eager for knowledge. I think हम सब में वो बहुत common है, people who choosing biosciences after not getting into MBBS. So of course, Maria, anything you'd like to add to this? I think same story goes for me क्योंकि like मैंने भी प्री मेडिकल किया. प्री मेडिकल के बाद जाहिर सी बात है मुझे भी मेडिकल में जाना था और बेसिकली सर्जन बनना था. आई थिंक ग्रेस एनाटमी की स्टोरी मेरे अंदर वो रह गई, लाइक मुझे सर्जन ही करना था.
मैंने आई थिंक एमडी कैट भी दिया लेकिन डेफिनेटली क्लियर नहीं हुआ, लेकिन मुझे कहीं वो चीज़ थी कि लाइक मैंने प्रैक्टिकलों को सोचा, फिर मुझे लाइक एमडी कैट में एक और साल नहीं वेस्ट करना था, मुझे मेडिकल में रहना था, तो मैंने आई थिंक बायो साइंस लेके मुझे रिसर्च में जाना था, और बेसिकली रिसर्च में जाके मुझे आगे फोरेंसिक्स में जाना है, थोड़ा कूल लगता है, ओके डेफिनेटली थोड़ा इंटरेस्टिंग है फोरेंसिक्स में, मुझे उसमें जाना है, या फोरेंसिक्स का रिसर्च ही मेरा मेन उसमें है। लेकिन आई थिंक मैं शायद अगर मुझे लाइक मम्मा ने थोड़ा सा भी फोर्स नहीं किया था मेडिकल में, तो मैं आई थिंक बीबीए या मार्केटिंग में कर रही होती, रियली क्योंकि आई थिंक मेरे में वो स्किल्स है, मैंने वो सब चीजें की हैं, और आई थिंक मैंने बायो से रिलेटेड, बायो से हट के मैंने ज्यादा मार्केटिंग आई थिंक कंप्यूटर वाइज उसमें ज्यादा काम की है, उसमें इंटर्नशिप अच्छा। ज्यादा की उसमें की है, तो आई थिंक मैं उसमें भी कर सकती थी, लेकिन लाइक मेरा मेन फोकस वैसे मेडिकल में ही था। medical में था। And of course, when you're talking about being a surgeon and then a forensic scientist, I'm seeing a pattern here. You like cutting people? Is that what this is? Oh my God, she's saying yes. Actually, इतने ज्यादा मेडिकल ड्रामे देख लिए ना, तो वो चीज अंदर ही बैठ वो गई है। एक दिल में है ख्वाहिश कि करना जरूर है। Okay, perfect. And Fatma, what about you? What was your reason for joining biosciences? एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि अब किसी भी फील्ड को अगर चूज करते हो तो वो हर चीज़ मुश्किल है, अगर आप इंजीनियर बन जी, रहे हो तो बिल्कुल सही मुश्किल बात है, है। अगर मेडिकल में तो मेरा तो यही था कि अगर मम्मा ने कहा कि क्योंकि वो ही पढ़ाते हैं माँ बाप वगैरह, Exactly. तो अगर उनकी ही चॉइस पे आपको लेना है तो आप ले लो, वरना बच्चों की अपनी होती है, तो फॉर मी ऐसा ही था कि कुछ भी ले लो, बस लाइफ में सब करो। लाइफ में सब करो। And you're happy with your degree? यस अच्छा लग रही है आपको? आपको मजा आता है इसको? मजा तो नहीं आता, समटाइम टायर्ड हो जाता है, लेकिन यही है कि अब ली है तो करनी है। ली है तो करनी है, पूरी करके जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो बायो साइंटिस्ट हैं, लैब वर्क सबसे ज्यादा हमारी डिग्री में लैब वर्क ही होता है। कोई ऐसी लैब जो आप सबसे ज्यादा एंजॉय करते हो? Up तक genetic engineering I've enjoyed a lot. Oh, really? Yes, it's been a nice journey because we've done a lot of different experiments. It's more like कि जो आप experiment first class में कर रहे हो तो उसका second step आप second class में करोगे. So it's been enjoyable. I liked it. Genetic engineering, Yeah. that even sounds very interesting. What about you, Maria? फॉर मी इट्स बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि लाइक हम वहाँ पे रोज डिफरेंट करते हैं, और मेरी फेवरेट लैब भी वहीं पे होती है 98 कैंपस। Okay. पीसफुल है, कोई शोर नहीं है, लाइक मेरी काइंड ऑफ वाइब्स है वहाँ पे, तो डेफिनेटली बायोटेक्नोलॉजी की जो लैब हम वहाँ पे करते हैं और 98 कैंपस की जो लैब है वो बेस्ट है। Perfect. Yeah, I've lab. also heard about it from you before. तो अब ये सुन के दोबारा अच्छा लग रहा है कि वो ओपिनियन चेंज नहीं हुआ. Of course, when we also talking about funding, आपको रिसर्च के लिए एज एच पाकिस्तान में फंडिंग भी नहीं मिल पाती Exactly. है, लेकिन ऑफ कोर्स दिस इज समथिंग दैट शुड बी वर्कड अपॉन बाय द गवर्नमेंट और जो इंस्टीट्यूशंस हैं. And this was a lovely conversation we got to have with you. The audience got to know you a little better. So coming back to the actual topic of the podcast, which was thalassemia. So Maria, could you tell us a little about thalassemia to bring a little clarity to it, and what is its significance? So basically, thalassemia is a genetic blood disorder in which the body produces abnormal hemoglobin, and due to this, the red blood cells in our body get destroyed, and this leads to anemia. And there are two types of thalassemia. One is thalassemia major and thalassemia minor, and thalassemia major is the more severe one. Perfect. So we got to understand what thalassemia is, but why is it such a pressing issue in Pakistan? ओके, सो एज वी नो कि पाकिस्तान में थैलेसीमिया के सबसे हाईएस्ट रेट्स हैं, 5 to 7% ग्लोबली पाकिस्तान में इसके रेट्स हैं, और क्योंकि पाकिस्तान में इसकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा कम है, इसमें कैरियर काउंसलिंग अगर नहीं होती, अवेयरनेस नहीं होती, तो पाकिस्तान में लोगों को पता भी नहीं होता, और जो बर्ड्स हो रही होती हैं उसमें कैरियर्स उसमें आगे ही जा रहे होते हैं, तो लाइक बहुत सारे लोगों को, क्योंकि हमारा एक और मेन प्रॉब्लम इसमें आता है कजन्स मैरिज बहुत ज़्यादा कॉमन है पाकिस्तान में। तो आई थिंक सबकी फैमिली में कजन मैरिज है, हमारी फैमिली में कजन मैरिज होती रहती है, तो इस वजह से क्योंकि हम लोग मैरिज से पहले कोई एक प्रॉपर जेनेटिक टेस्टिंग नहीं करते। जेनेटिक टेस्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कहीं पे कल्चरल इश्यूज आ जाते हैं, कहीं पे सोसाइटल इश्यूज आ जाते हैं, लोग कैरियर जेनेटिक टेस्टिंग नहीं करवाते, तो यही वजह है जिसकी वजह से हमें पता भी नहीं होता, और फिर मैरिज के बाद जब बर्थ होती हैं तो उसमें हमारे पास थैलेसीमिया के कैरियर्स आ रहे होते हैं, तो यही इसकी वजह है कि लाइक पाकिस्तान में इसके रेट बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं, और अवेयरनेस नहीं है हमारे पास
जेनेटिक काउंसलिंग नहीं है, तो एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पाकिस्तान में इसकी। Definitely, we do need genetic counselors in Pakistan क्योंकि ऐसी कंट्री है जहाँ पे cousin marriages काफी हद तक अभी भी की जा रही हैं, even after understanding कि उसके काफी साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा जेनेटिक काउंसलिंग काफी इंपॉर्टेंट चीज है. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट थैलेसीमिया एज अ डिजीज, तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? इसके सिम्टम्स, इसमें अगर हम नॉर्मल केसेस की बात करें तो इसमें हमारे पास फिटीग आती है, वीकनेस आता है, इसमें जॉइंटिस आ जाता है, फीवर आ जाता है. लेकिन अगर हम सिवियर केसेस की बात कर रहे हैं जिसमें हमारे पास स्केलेटन डिफॉर्मिटीज़ आती हैं, स्केलेटन डिफॉर्मिटीज़ के अलावा इसमें हमारे पास इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा रुक जाती है, इनकी ग्रोथ रिड्यूस हो जाती है, और इसमें रेगुलर डे टू डे बेसिस में इनकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे इंक्लूड होते हैं. और जो हमें पता है कि ट्रांसफ्यूजन आई थिंक काफ़ी एनजीओज प्रोवाइड कर रही हैं, फ्री ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमें प्रोवाइड कर रही हैं. उमैर सना फाउंडेशन है, उसमें फ्री हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन है. लेकिन फिर भी ये एक चीज़ बहुत एक्सपेंसिव है अगर हम बात करें तो इसकी, तो कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे एक चैलेंजेस हमारे पास यूँ आता है जी, क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा होता है. अफोर्ड नहीं कर सकता. परफेक्ट. तो आप थैलेसीमिया को डायग्नोज किस तरह करते हैं कि इसका डायग्नोस्टिक प्रोसेस क्या है? सो फॉर डायग्नोसिस आपको इसके लिए ब्लड टेस्टिंग करना ज़रूरी है. आप अपना कंप्लीट ब्लड काउंट कराएं, and then there's also this thing called hemoglobin electrophoresis where they check your hemoglobin and they see if it's normal or abnormal. and genetic testing भी important है. आपकी सारी जीन हिस्ट्री आ जाती है, उसमें आपको अपनी जीन्स के बारे में सब इंफॉर्मेशन पता चल जाती है. फिर when you get yourself genetically tested, then you can figure out if you have a carrier or not. And for children whose parents are both carriers, then those parents have a 25% chance that their child might have thalassemia. So because of this statistic, it is important to get yourself genetically tested as well. Okay, so genetic testing is very important when talking about thalassemia is even a blood disorder. So perfect. So अगर आप हमने बात की डायग्नोसिस की फातिमा, तो आपके पास ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो कि लोग फेस कर रहे हैं डायग्नोस्टिक्स को लेके? लाइक पीपल हैव स्टिग्मा इन देयर माइंड के, और अगर वो कहीं पर अगर उनको ऐसा लगता है कि ऐसी चीज़ है और वो जाते हैं और वो अपना चेकअप कराते हैं, तो अब उनको होता है कि सामने वाला उनको जज ना कर ले, तो इस चीज़ को वो बजाय अवेयरनेस के वो इस चीज़ को हाइड करते हैं, जिसकी वजह से चैलेंजेस वो अपनी फैमिलीज़ में भी फेस करते हैं, और जो है उनकी वजह से आगे भी बहुत लोगों को मतलब फेस करना पड़ता है. तो यही सब चीज़ें. और इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करूँगी कि आई थिंक कि हम देसी फैमिलीज में अगर हम देखें तो पंजाब साइड में भी, यहाँ पे भी कहीं पे होगा, लेकिन फैमिलीज में इस तरीके से होता है. अगर आई थिंक मैंने अपनी फैमिली में भी नोटिस किया है, पंजाब में जब मैं गई थी मैंने चीज़ बहुत नोटिस की है कि जब लड़कियों की शादी की बात होती है ना वहाँ पे, तो वो लोग देखते हैं कि उसमें कहीं पे कोई कमी ना हो. तो अगर ये सब चीज़ें सामने आएंगी, डेफिनेटली अगर वो चेक ली जाएंगी, चेकअप करवाएंगे और पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली उनकी मैरिज में बहुत प्रॉब्लम आएंगी. वो लोग सारी सी बातें ये नहीं देंगी लाइक इस लड़की को ये प्रॉब्लम है, हमें इसका शादी नहीं करनी, आगे कितनी प्रॉब्लम्स आएंगी. तो ये चीज़ बहुत कॉमन है, ये चीज़ पंजाब साइड में रूरल एरिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है. तो यही एक प्रॉब्लम है कि लोग शादी से पहले ये चीज़ डायग्नोज ही नहीं कराते, चेक भी नहीं कराते. तो अगर ये चीज़ ठीक होगी ना, अगर यही चीज़ हमारे माइंड से निकलेगी ना, तो ये ज़्यादा ईजी होगा. हमें अवेयरनेस हमारे पास होगी कि थैलेसीमिया है क्या, हमें मतलब यही चीज़ आगे पे प्रॉब्लम थोड़ा हमारे लिए ईजी हो जाएगा. क्योंकि आप सही कह रही हैं, एक स्टिग्मेटाइजेशन है थैलेसीमिया के खिलाफ भी और काफ़ी अलग डिजीज़ के खिलाफ इन पाकिस्तान, जो कि बहुत लोगों को इम्पैक्ट कर रही होती है, इफेक्ट कर रही होती है, स्पेशली गर्ल्स. जैसे आपने शादी की बात की, ऑफ कोर्स पहले से ही इतना सोसाइटल प्रेशर होता है, फिर इस तरह का उन पर कोई प्रेशर डाल दिया जाए. दैट वाज अ वेरी ग्रेट पॉइंट. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट थैलेसीमिया, उसका डायग्नोस्टिक प्रोसेस और क्या चैलेंजेस हैं, तो इसको मैनेज किस तरह किया जाता है एज अ डिजीज थैलेसीमिया? हाउ इज इट मैनेज्ड? For management, blood transfusions are very important, and you can also get an iron chelation therapy done, in which your body removes all the excess iron from your body, and then bone marrow transplant भी की जाती है, जिसमें आपका सारा bone marrow को replace किया जाता है, so that it doesn't produce affected hemoglobin से जो आपका RBCs destroy होते हैं, वो वाला process ख़त्म हो जाए, तो इसकी वजह से bone marrow transplant किया जाता है. But these treatments are very expensive in Pakistan और ये widely available भी नहीं होती, so this is still a pressing issue.
परफेक्ट. सो एज मारिया डिस्कस्ड कि आपके पास करते किस तरह से हैं, मैनेज किस तरह करते हैं, तो क्या इसको प्रिवेंट किया जा सकता है? Yes, I think prevention begin with awareness. If people are aware of what thalassemia is, I think they will at least think about that we should just get our genetic tests. So अगर हम आई थिंक हमारे NGOs भी इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. बिग थैंक्स टू NGOs कि लाइक वो इस लोगों को अवेयर कर रहे हैं इस बारे में. आई थिंक लोग इस चीज़ को पूरी तरीके से समझेंगे नहीं, एटलीस्ट कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग इनके दिमाग में क्रिएट होगी कि एटलीस्ट हम जेनेटिक टेस्टिंग तो करा सकते हैं. इसके बारे में सोचेंगे तो सही. वो खुद नहीं करेंगे, वो आगे दूसरों को बताएंगे, और जो लोग करवा भी रहे हैं वो चीज़ आगे स्प्रेड करेंगे, अपने फैमिली में स्प्रेड करेंगे, तो वो चीज़ एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि जेनेटिक टेस्टिंग तो करवाई जाए. तो डेफिनेटली इसमें मेन रोल हमारे पास अवेयरनेस का ही आता है. अगर अवेयरनेस कैंपेन्स हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से भी होंगी ना, तो वो काफ़ी हेल्प आउट करेगी. तो एटलीस्ट कुछ रेट्स इसमें कम होंगे थैलेसीमिया के. तो मेन प्रिवेंशन यही है थैलेसीमिया के लिए कि जेनेटिक काउंसलिंग ज़रूर होनी चाहिए, कैरियर इनकी टेस्टिंग होनी चाहिए, कैरियर स्क्रीनिंग होनी चाहिए, और अवेयरनेस ही बिग स्टेप है कि थैलेसीमिया की रेट्स को कम किया जाए पाकिस्तान में. Great. And Fatma, would you like to add something to this? बेसिकली अगर हमारे पास अवेयरनेस हो गया, एक प्रीनेंटल टेस्टिंग होती है, अगर हम करवाते हैं, जैसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर पेरेंट्स करवा लेते हैं तो उनसे उनको नॉलेज मिल जाती है, और वो पहले ही बिगेस्ट स्टेप ले सकते हैं कि डिस्कस कर सकते हैं क्या है क्या नहीं है, तो उस पर स्प्रेड आउट भी कम होगा. तो हमें ये चीज़ दिमाग में रखते हुए, और जब हमें लगे कि बेसिकली हमें कोई ऐसी चीज़ है या जो भी, तो हमें काउंसलिंग भी लेनी चाहिए, और गवर्नमेंट को भी काउंसलिंग प्रोवाइड करनी चाहिए. गवर्नमेंट को भी काउंसलिंग प्रोवाइड करनी चाहिए. गवर्नमेंट की अगर प्रीनेटल टेस्टिंग पे भी काउंसलिंग कर रही है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है कराची में या अगर हम सिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे वुमेन्स को प्रॉब्लम नहीं होगी प्रीनेटल टेस्टिंग में. कहीं पे वो लोग हिचकिचाएंगे, कहीं पे वो रुकेंगे, लेकिन एटलीस्ट वो ट्राई करेंगे. और ये चीज़ रूरल एरियाज़ में तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला. प्रीनेटल टेस्टिंग तो वो आई थिंक वो जब प्रेगनेंसी होती है तो वो इस चीज़ को छेड़ते भी नहीं है. बिल्कुल भी आई थिंक नहीं. वो इसके अराउंड चेकअप्स भी कर लें तो वो बड़ी बात होती है उनके लिए. तो ये प्रीनेटल टेस्टिंग उनके लिए काफ़ी बड़ी बात होगी. तो आई थिंक काउंसलिंग मोस्टली कराची में, इस्लामाबाद शहरों में होगी, लेकिन रूरल एरियाज में ज़्यादा इस पे करनी चाहिए अवेयरनेस. जी, ताकि अगर एक दफ़ा शहरों में शुरू हो तो कहीं जाके वो थोड़ा रूरल एरियाज में पहुंचेगी. ऑफ कोर्स हमें उसकी बहुत ज़रूरत है, स्पेशली विद डिसऑर्डर्स लाइक थैलेसीमिया. तो as every other podcast, the guests were able to choose what topic they were going to talk about. What inspired you to want to talk about thalassemia today? I've seen families struggle with financial and emotional burden, especially with managing such disorders, especially if they're genetic, because I feel like the main issue is the stigma. It is not normal for anyone to get genetic screening done, and especially that too before marriage. So I feel like main cheez yahi hai ki we should break the stigma as a community, and normalize this thing of we should normalize genetic screening. And because I've seen families suffering from this, I felt like it was my personal duty to actually contribute to this cause and speak up about it. Perfect. That was a very well-formed answer. And when we are talking about thalassemia and how it inspired you to come here and talk about it on the podcast, so were there any personal experiences जिन्होंने आपको push किया कि आप यहाँ आएं और इसके बारे में बात करें? मैंने आई थिंक इंटर्नशिप की थी. आई थिंक 2-3 मंथ्स पहले मैंने इंटर्नशिप की थी साउदीन हॉस्पिटल में. तो मैंने लैब वर्क किया था, मैंने ब्लड बैंक में भी काम किया था. तो उस वक्त मैंने काफ़ी सारे टेस्ट किए थे, और वहाँ पे एक केस था अली का. वो एक छोटा सा लड़का है, आई थिंक 6 to 7 years ओल्ड है, और उसके मैंने जब ब्लड टेस्ट चेक किए थे, आई थिंक उसको थैलेसीमिया था, थैलेसीमिया मेजर था. और लाइक क्योंकि उसके डे टू डे रोज़ ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहे थे, तो वो ऐसा पहली बात ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में, एक अच्छी हॉस्पिटल में भी उसका हो रहा है, पेरेंट्स इस चीज़ को कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पेरेंट्स पे जो बर्डन होगा, फैमिली के रिलेशन पे बर्डन होगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत सारे होते हैं. तो डेफिनेटली अगर उस चीज़ को पहले ही हम चेक करवा लें, पहले ही उसकी काउंसलिंग हो जाए, पहले ही जेनेटिक टेस्टिंग हो जाए, तो वो चीज़ आगे होने से रुक सकती है. तो डेफिनेटली मैं यही कहूँगी कि जेनेटिक टेस्टिंग, जेनेटिक काउंसलिंग डेफिनेटली होनी चाहिए, और आई थिंक सब हॉस्पिटल्स होनी चाहिए. Exactly. हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट्स, आपके पास ये जब इंस्टीट्यूशंस आगे आके इसको बढ़ावा देंगे, तभी आई थिंक हमारी जो जनरल पब्लिक है वो भी समझेगी इसकी इम्पोर्टेंस क्या है. So Fatma, do you have any comments for our listeners? यही कहना चाहूँगी मैं कि अगर आपको ये चीज़ है
तो आप बगैर किसी से डरे या फिर बगैर ऐसे सोचे कि सोसाइटी क्या सोचती है, आपको अपने लिए जो है वो स्पीक अप करना पड़ेगा और स्टेप लेना पड़ेगा। आप जाएं, अपना टेस्ट कराएं और उसमें देखें क्या आ रहा है। अगर रिज़ल्ट पॉजिटिव है तो उसके लिए आप अपने जो है वो सबसे पहले अपनी जो है अपने आप को सेटिस्फाइड करें कि अब ये है, तो अब इसके साथ जो है वो उसको सही किया जाए। और इसके अलावा जो है आप दूसरों को भी बताएं कि ये ऐसी डिजीज़ होता है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, कि हम पहले से उसकी टेस्टिंग करा लें और इससे हम काफ़ी लोगों की ज़िंदगियां भी बचा सकते हैं। क्योंकि जिसको थैलेसीमिया होता है तो वो मतलब ब्लड बार बार जो है वो चेंज कर रहे होते हैं, वो खुद भी टायर्ड हो जाते हैं इस चीज़ से। तो अगर हम पहले ही पता होगा और हम उसका इलाज मतलब स्टार्ट करेंगे तो काफ़ी बेहतर होगा। काफ़ी बेहतर होगा। एंड ऑफ कोर्स एक मेंटली भी बंदे के ऊपर काफ़ी प्रेशर आ जाता है। इवन द पेशेंट व्हेन वी टॉकिंग अबाउट, जैसे आपने कहा वो खुद थक जाते हैं, तो उनके इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनको भी उनको सपोर्ट करना चाहिए, मेंटली सपोर्ट करना चाहिए। दोस्त, आपके रिश्तेदार हों, ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर टुडे। आपने थैलेसीमिया के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। ऑफ कोर्स पाकिस्तान में इसके खिलाफ काफ़ी स्टिग्मेटाइजेशन है, जिसे ख़त्म करने के लिए ही इस तरह के पॉडकास्ट, कोई शोज बहुत ज़रूरी हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर टुडे। आर देयर एनी पार्टिंग कमेंट्स you'd like to leave the audience with? Well, I'm just glad to join this podcast and raise awareness about thalassemia, and definitely हमें छोटे छोटे स्टेप्स ही अगर हम लेंगे, अवेयरनेस करेंगे, अवेयरनेस पाकिस्तान में अगर होगा जितना ज़्यादा थैलेसीमिया के बारे में, उतनी ज़्यादा हेल्प आउट होगी पेरेंट्स के लिए, फैमिलीज़ के लिए। तो डेफिनेटली मेरे लिए एक न्यू एक्सपीरियंस था ये पॉडकास्ट ज्वाइन करना, और लाइक काफ़ी फन था। Great. I Anything, want Maria? to thank Miss Urusa for giving us this opportunity to talk about this topic, because it is something that not a lot of people know. Especially after this podcast, I'm sure सबको genetic screening, genetic counseling सबका idea हो गया होगा. So I'm just thankful for Miss Urusa कि उन्हें हमें ये opportunity दी. Perfect. And thank you guys once again for explaining everything so well. Thank you. And thank you to our listeners for tuning in to another episode of BioTalk. And of course, if you have any feedback for us, you can leave it at feedback@zebfm.org. Or if you don't have the time for that, you can just drop a comment down in the comment box. Thank you so much for watching this episode. This is your host Fatma signing off from Zeb FM.